Hello everyone, welcome to my channel Law Optional by श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज का जो सेशन है वो 2025 लॉ ऑप्शनल पेपर के रिगार्डिंग है। दिस सेशन इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस ईयर्स पेपर which was mix of static portion and contemporary legal reforms. Static questions भी पूछे गए थे, repeated themes भी थे, but नए जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी ग्लोबल पॉलिसीज आई हैं, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या चेंजेस हुआ था, क्या क्या नई चीज पूछी गई थी, कैसे क्वेश्चंस को रिफ्रेज किया गया था। दो द थीम वाज सेम बट द क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्वेश्चन, द फ्रेमिंग ऑफ इट वाज चेंज स्लाइटली। सो लेट अस बिगिन दिस सेशन. Before that, thank you so much for making our daily answer writing program a success. Most of the students have given a very good and positive response towards our daily answer writing program, for which we are really thankful to you all. Our team is really very much happy with the responses that we are getting. Thank you so much everyone. So you can connect with me on this number. You can definitely call me. Give me a call on this number. You can definitely WhatsApp also if you have any query. You can give me a mail on my email in which you can give me your feedback and the queries that you are facing. You can definitely follow me on my Instagram handle, which is Law Optional by Shreyanshi Chaturvedi, about your queries or any feedback that you want to give to us. So let us begin our session. What we have learned from means law optional, particularly 2025. Let us begin our session now. So firstly हम आज के सेशन में ये देख लेते हैं कि the time and again I have said that UPSC law optional paper is very much predictable. बहुत ज्यादा predictable पेपर है। Though UPSC it itself is said to be which is a paper which is not predictable, which is unpredictable public service commission. But the only good thing about UPSC is that its law optional paper, which is of our importance, is very much predictable. And this year's paper or every year's papers just gives us this insight. हर साल repeated themes जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. If you have prepared according to the previous year questions, according to the themes that are repeated, you are well prepared with your exam. Though as we said, so we will discuss कि पेपर में हमारे कौन कौन से repeated theme थे. Firstly, if I talk about paper 1, so paper 1, as we know, is about constitutional, administrative, and international law. In this year's paper, if you have seen, the question was from L. Chandra Kumar, an administrative tribunal. So I have make a list कि कौन कौन से year में ये questions आए हुए थे. Similar question 2022 में आया, 2019 में आया, and 2017 में आया, which was basically related to the same theme of administrative tribunal and the landmark judgment of L. Chandra Kumar, which was about the Article 226 writ jurisdiction. Secondly, if I talk about this question of paper 1, which was related to the presidential consultation with Supreme Court, which is advisory jurisdiction, I have mentioned it earlier as well. Supreme Court से related jurisdiction का question हर साल आता है, so it is of pivotal importance. और इस साल ये वाला question इसलिए आया क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 14 questions पूछे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से. सो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2022 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है, which is related to the basically jurisdiction से क्वेश्चन आता ही आता है. So it is again a repeated theme, a repeated question, जिससे related क्वेश्चन आता ही आता है. If I talk about Article 21, in every year there is a question on Article 21, right to life. This year it was related to
Aruna Sabang or right not to live, right to die. It again, this in 2018, direct question was on Aruna Sabang case. In 2017, 2015 and 2019, again question was on similar theme, Article 21. Next, in paper 1 itself, judicial review in administrative action पे भी question था. सिमिलर क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, 2017 और 18 में भी आया हुआ है. सो बेसिकली ये सब बताने का मकसद ये है कि हर एक जो थीम है लॉ ऑप्शनल पेपर में वो हर साल रिपीट होती है. मोस्टली अगर आपने एक क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर, एक प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं ऑफ 1 और 2 पेज, आपने एक मॉडल आंसर बना लिया है, तो अगर 3-4 क्वेश्चंस ईयर्स के क्वेश्चंस को क्लब करके, तो देन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑन द गिवन थीम. इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि अगर मैं एग्जाम को इस अप्रोच से डील करूंगा तो इट इज वेरी इजी टू कवर इट ऑल. अदरवाइज वी फील कि सब कुछ पढ़ना है. नहीं, दिस पर्टिकुलर रिपीटेड थीम्स गिव्स अ क्लैरिटी कि सब कुछ नहीं पढ़ना. वी हैव टू स्टिक टू लिमिटेड थीम्स एंड विल कवर इट ऑल इन दैट particular manner only. Next, it's the question on parliamentary privilege. Again, this question was asked on 2022, 2020, 2019 and 2008. Parliamentary privilege पे क्वेश्चन आता है. ये भी एक रिपीटेड थीम है. गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. इस बार गवर्नर पार्डन पावर से आया था. 2015 और 17 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था. इमरजेंसी प्रोविजन से आपके 44th अमेंडमेंट से क्वेश्चन 22 में भी आया है, 21 में आया है, 2018 में, 2013 में आया है. एग्जैक्ट थीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं या सिमिलर थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं. इफ आई टॉक अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त, मोस्टली क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन 2020, 2019, 2017. क्वेश्चन was similar to officious, the same which is asked in this year's paper. लोकपाल एंड लोकायुक्त पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. 2020 में, 19 एंड 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है. अगर आप 2017 का क्वेश्चन को देखें तो इट इज सिमिलर टू द 2025 क्वेश्चन. सो आपके जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, द कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, देन आपके पेपर 2 में भी थीम्स रिपीट हुए हैं. अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू योर कल्पिबल होमिसाइड एंड मर्डर रिमेन्स द सेम क्वेश्चंस. आपके प्राइवेट डिफेंसिव क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंसिव क्वेश्चन हर साल आता है, सेम आया हुआ है. सेम रिक्वायरमेंट भी, लिमिटेशन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेम क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डिफेमेशन, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जो आपका थीम है उससे क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन ऑन जॉइंट लायबिलिटी, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है क्रिमिनल लॉ से. अगर हम पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ की बात करें तो आपका पेपर 2 में भी क्वेश्चंस जो थीम्स है वो रिपीट हुए हैं. सो क्वेश्चन द बेसिक स्टैटिक कोर पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट इज आस्क्ड. सो वो आपसे सिर्फ कोर सब्जेक्ट की मांग कर रहे हैं. बीपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट है उसके कोर बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछता है. बेसिक क्वेश्चन कल्पिबल होमिसाइड एंड मर्डर से रिलेटेड. अगर मैं टॉट की बात करूं तो क्वेश्चंस वर ऑन वाइकेरियस लायबिलिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था. न्यूसेंस वाज नेग्लिजेंस का क्वेश्चन था. क्वेश्चन ऑन डेफेमेशन, क्वेश्चन ऑन दिस वेरी फेमस लैटिन मैगजीन यूबिजस इबी रेमेडियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एडीआर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हम आगे डील करेंगे. बट क्वेश्चंस की जो थीम्स थे वो बेसिक स्टैटिक थे, रिपीटेड थीम्स से क्वेश्चन पूछे गए थे. सो अगर आपने एक प्रॉपर 2 पेज का नोट बना रखा है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से ऑन वाइकेरियस लायबिलिटी, ऑन फॉर एग्जांपल ऑन डेफेमेशन, देन यू आर डन विद योर प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम. So you will able to answer any question on this topic. If I talk about contract and mercantile law, question will remain the same. Contract के भी questions जो इस साल पूछे गए
उनकी थीम्स भी सिमिलर थी. क्वेश्चन वाज ऑन कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन था. क्वेश्चन वाज ऑन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेल्स ऑफ गुड्स, इसके बेसिक क्वेश्चन थे. योर क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन था, ये भी सेम रिपीटेड थीम से आया हुआ. अगर मैं कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट की बात करूं तो क्वेश्चन वाज ऑन पीआईएल, राइट टू इंफॉर्मेशन. तो बेसिक क्वेश्चंस. क्वेश्चन वाज ऑन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. द पर्पस ऑफ शोइंग ऑल दिस थीम्स कि कौन कौन से थीम कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं, इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन जो है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, जो बेसिक थीम है वो सब में सिमिलर है सारे पेपर्स में. इवन दो इट इज सेड इस साल बच्चों ने कहा कि पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, कुछ क्वेश्चंस की वजह से उन्हें लगा कि क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी ज्यादा हो गया है, स्टैटिक नहीं पूछा जा रहा या स्टैटिक कम पूछा गया है. ऐसा नहीं है, सारे आपके जो स्टैटिक कोर थीम से उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दिस इज द प्रूफ ऑफ इट. नेक्स्ट, व्हाट वाज द चेंज. थोड़ा सा चेंज आया है बस रीफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन से, जहां पे अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, योर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज ऑन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, रोम स्टैट्यूट, आईसीसी से क्वेश्चन था. ये इसकी रिफ्रेजिंग डिफरेंट थी. ये क्वेश्चन इट वाज द न्यूनेस इन द एग्जामिनेशन, कुछ न्यू था तो ये क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन ऑन कॉन्टिग्यूअस जोन, डिस्कस द इंडियन पोजीशन ऑन दिस सब्जेक्ट. सो only these questions were of contemporary global reforms. So basically international law में आपके static question portion भी था, जैसे कि state succession से question था, and other than that your question was of ICC, your question was on this treaty on prohibition of nuclear weapons, 2017 का जो policy है उस पे question था. तो only change was in related to some contemporary legal global reforms. इंटरनेशनल लॉ के जो पार्ट है आपका, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पूछे गए थे वो थे आपके जो करंट लीगल डेवलपमेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं उससे रिलेटेड था. तो ये क्वेश्चन डिफरेंट थे. देयर वाज अ न्यूनेस इन दिस एग्जामिनेशन. पैटर्न में थोड़ा सा चेंज था कि अब आपसे लॉ के पेपर में थोड़ा सा डायनेमिक होने की डिमांड की जा रही है. ठीक है, ये क्वेश्चंस डिफरेंट थे. अदर देन दैट दिस क्वेश्चन वाज आल्सो न्यू. क्वेश्चन ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन, दिस पॉलिसी एंड नेशनल ट्रीटमेंट, दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन. ये एक न्यू एडिशन था दिस ईयर. ये आपके कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस थे, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट से क्वेश्चन था जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं. दिस वाज डिफरेंट. ठीक है, तो बेसिकली few questions were from contemporary development, basic which is related to your which is going on news, very famous in news, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. तो थोड़ा सा पैटर्न में यहाँ चेंज हुआ था इस ईयर के पेपर में. नेक्स्ट, एज आई मेंशन, नया पॉपअप क्या हुआ था, तो आपका जो नया एलिमेंट था 2025 के पेपर में वो ये था. आपका पेपर 1 में रोम स्टैट्यूट से क्वेश्चन पूछना, आपके आईसीसी से क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्टिन्यूअस जोन से क्वेश्चन पूछा गया था, इस टीपीएनडब्ल्यू ट्रीटी से क्वेश्चन पूछा गया था. तो दिस वाज क्वेश्चन ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन. सो दीज वर द न्यू एडिशंस. आपके स्टैटिक के साथ पॉलिसी जो चल रही हैं, स्टैटिक इंटरनेशनल लॉ के साथ, जैसे स्टैटिक इंटरनेशनल लॉ से स्टेट सक्सेशन की मैंने बात की, उससे क्वेश्चन था. आपके जनरल असेंबली से क्वेश्चन था, दैट वाज अ स्टैटिक पार्ट. बट न्यू क्या ऐड किया गया था, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, उससे क्वेश्चन था. इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, सो क्वेश्चन वाज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीडिएशन सेल. बेसिकली क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आता है. दिस टाइम इट वाज द न्यू एडीआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे. क्वेश्चन वाज ऑन योर प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल. So it was new in the environmental law part, but this question was repeated from 2008 question paper. Polluter pay
प्रिंसिपल से क्वेश्चन 2008 में आया है आपका लास्ट, उसके बाद से अब पूछा गया था. सो द न्यूनेस वाज मोर अबाउट फ्रेजिंग और incorporating contemporary development within long standing themes, not wholesome surprise. So न्यूनेस आपकी ये नहीं थी कि आपसे कुछ नया ही अलग ही पूछ लिया गया है. न्यूनेस सिर्फ रीफ्रेजिंग थी. स्टैटिक पोर्शन के साथ जो नई पॉलिसी चल रही है उसको एड ऑन करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. सो आपको थोड़ा सा डायनेमिक होके भी चलना है. इस ईयर के पेपर ने हमें ये बताया कि लॉ ऑप्शनल पेपर में थोड़ा सा डायनेमिज्म आ रहा है. अब हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट पे ही टैप रखनी है ताकि हम किसी ऐसे क्वेश्चन को मिस ना कर दें या हम इसमें प्रॉपर आंसर कोर डिमांड को फुलफिल करने से रह जाएं. सो एज आई मेंशन, पेपर 2 में आपका कंज्यूमर मेडिएशन सेल से क्वेश्चन था. ठीक है, ये इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन था, ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन था, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट से क्वेश्चन था. अच्छा, एक और डिफरेंट किया इस पेपर में, वो था प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन. सो दिस टाइम क्वेश्चन वाज डायरेक्टली ऑन द प्रोविजन. फॉर इंस्टेंस दिस क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3 कॉम्पिटिशन एक्ट. सो इस ईयर के पेपर में थोड़ा सा चेंज ये था, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन थे, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट से क्वेश्चन थे. सो बेसिकली 3 मेजर डेवलपमेंट हुए इस ईयर के पेपर में. योर क्वेश्चन ऑन दिस एज आई मेंशन अर्लियर कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन बहुत टाइम बाद आया था. लास्ट 2008 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है. सो बेसिकली जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आगे पूछा गया था आपसे. सो दिस वाज द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ योर दिस ईयर्स पेपर. तो आपको अब अपनी तैयारी किस तरीके से लेके चलनी है उसके लिए एनालिसिस है कि मुझे सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कवर नहीं करना, मुझे स्टैटिक के तो नोट्स बनाने हैं, मुझे स्टैटिक के सारे मॉडल आंसर्स रखने हैं, सारे रिपीटेड थीम्स पे अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाना है. एडिशनली मुझे क्या ऐड करना है, जो भी कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जो बहुत ज्यादा बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, उसे मुझे उसे साथ में अपने नोट्स के साथ ऐड ऑन करते चलना है. सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि कौन से क्वेश्चन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या चेंज आया था. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस इट अर्लियर ऑल्सो. नेक्स्ट, सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या चेंजेस थे इस ईयर के पेपर में. अब हम ये समझेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है. फर्स्टली, एज आई मेंशन, आपको केस लॉ इंटीग्रेशन लेके चलना है. जैसे कि एल चंद्र कुमार वाला क्वेश्चन विच वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर केस लॉ लैंडमार्क केस से क्वेश्चन पूछा गया था. सो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपनी केस लॉ की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है. आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस जो थे वो डिसाइडेड केसेस से पूछ रहे हैं. आपको लैंडमार्क जजमेंट्स याद रखने हैं, चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो. फॉर दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है, जो आपके 4 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस केशवानंद भारती, मेनका गांधी, एल चंद्र कुमार, you have to definitely incorporate them in their answers. For example, basic structure wala question which cannot be answered by without mentioning this landmark judgment. So आपको case law, landmark case law पे short note होने ही चाहिए. Second point you have to keep in mind, principle with practice. Question इस तरीके से फॉर्म किए गए थे कि सिर्फ आपको रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, आपके क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेज किए गए थे. फॉर एग्जांपल, आपके डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन से क्वेश्चन सिर्फ रोट लर्निंग से आंसर नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन द क्वेश्चन डिमांडेड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको क्लासिकल फॉर्म पता है कि नहीं प्रॉपरली. अगर आपको क्लासिकल फॉर्म में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो यू विल नॉट गिव आंसर इन 7 minutes. वो आप कंपैरेटिव उसके एनालिसिस नहीं कर सकते थे अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी. ठीक है, so for example anticipatory self defense under UN charter, WTO tariff disputes, so ये वाले टॉपिक्स आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड कर रहे थे. ठीक है,
कंपैरेटिव अप्रोच। सो डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे इस बार। फॉर इंस्टेंस आपका मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड, न्यूसेंस नेग्लिजेंस, ठीक है, न्यूसेंस नेग्लिजेंस, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल। सो आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है। आपको टॉपिक्स को सोली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ना, आपको टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको डिस्टिंक्शन पता हो। इफ आई गेट अ क्वेश्चन कि मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़ जाए तो मैं कैसे उसे आंसर करूंगा। अदर देन दिस, लीगल रिफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। जैसे कि 3 क्वेश्चंस आपके लीगल रिफॉर्म से थे मोटा मोटा, ठीक है। तो आपको लीगल रिफॉर्म जो भी कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अमेंडमेंट्स पे ध्यान देना है, वर्ल्ड लेवल पे जो भी लीगल कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट चल रहे हैं, कोई नई पॉलिसी आ रही है, कोई ट्रीटी आ रही है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बन सकता है। इसलिए कि पेपर ने हमें ये बताया है, ठीक है। सो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेपर 1 को प्रिपेयर कर रही हूँ तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स को नहीं देखूंगी, मैं थ्योरी के साथ जो केस लॉज हैं उनको भी बहुत अच्छे से याद करूंगी। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसको भी पढ़ाई करूंगी, उसके साथ ट्रीटी और जो भी पॉलिसी कंटेम्प्रेरी चल रही है मैं उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस रखूंगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव अ बैलेंस्ड प्रिपरेशन फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में भी आपको सिर्फ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पे ध्यान नहीं देना, जो सिर्फ डॉक्ट्रिन है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको जो आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का कैसे है उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो this was the analysis of our repeated theme and what was the new in this year's paper. Now coming back to our program, daily answer writing program. So to make your mind about our daily answer writing program, this program is, we have kept the fees of this programmation is very less, which is 3,999. Your daily answer writing program is a 90 days program in which your entire paper 1 and paper 2 will be covered, and per day you will be given one question, and within 24 to 48 hours you will receive your feedback of the given question along with the model answer. And the enrollment fees is kept very less for the students benefit, which is 3,999. So whosoever wants to enroll themselves can directly contact on this given number, or the student can also mail us on the given email and the team will contact back. So thank you so much for giving us such a wonderful response to daily answer writing program. Thank you so much. Good luck.